Let's revise. Assalamu alaikum. Let's revise these four important formula. First one is internal division. We are studying section formula. There are four important formula. First, internal division, दाखिली तकसीम जिसको कहते हैं उर्दू में, उसका साथ जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया है सेगमेंट ए बी and point C is dividing segment AB into two parts in the ratio n:n. We have considered coordinates of point A as x1, y1 and coordinates for B x2, y2 and coordinates of C x and y. To find out the coordinates of dividing point C, we have to use this formula. C is equal to into bracket mx2 plus nx1 upon m plus 1. This will be our x coordinate of point C. Next, to find out y coordinate of point C, we take my2 plus ny1 upon m plus n. This is the formula for internal division. Similarly, if point C divides segment AB externally, the figure will be like this. Point C dividing AB into ratio of m and n again, ratio of m:n. To find out the coordinates of C, we use the formula external division. Section formula for external division in Urdu we can say as खारजी तकसीम. Okay, खारजी तकसीम का ज़ाब्ता C is equal to into bracket mx2 minus, it is the formula of addition, it is the formula of subtraction, it is the sum and it is difference. Okay, just you have to change signs. Instead of positive, you will take negative sign. mx2 minus nx1 upon m minus n. For y coordinate, we write my2 minus ny1 upon m minus n. If point lies in the middle of segment, midpoint, we know midpoint divides the segment into two equal parts. Therefore, m and n will be equal. If these are equal, these will be cancelled. Therefore, you will not find m and n here. वस्ती नुक्ते का, अगर वस्ती नुक्ता है इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो कथा को दो मुसावी हिस्सों में तकसीम करता है, तो m और n जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे. m और n इक्वल होने की वजह से मनसूख हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसके ज़ाब्ते में आपको m और n नहीं दिखाएंगे. तो सेंट मिड पॉइंट के लिए देखिए यहाँ पर x का एवरेज x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसी तरह से y का एवरेज y1 प्लस y2 अपॉन 2. इस ज़ाब्ते से हम वस्ती नुक्ता यानी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुहद्दिद मालूम कर सकते हैं. फोर्थ वन, सेंट्रॉइड. We know about centroid. The segment joining midpoint of a side and opposite vertex of the triangle is called as median. Each triangle has three medians. All three medians are congruent, and point of congruence is called geometric center. And we know geometric center divides the median into 2:1 ratio. उर्दू वाले सुन लें, किसी जिले के वस्ती नुक्ता और मुकाबिल के रास को मिलाने वाला कता वस्तानिया कहलाता है. मुसल्लस के 3 वस्तानिये होते हैं, तीनों वस्तानिये मुतराकिज होते हैं. नुक्ता तराकिज को हिंदसी मरकज कहते हैं. हिंदसी मरकज वस्तानिये को 2 की निस्बत 1 में तकसीम करता है. तो उन खुशियात की बिना पर यह फार्मूला तैयार किया हुआ है. If you want to find out the coordinates of geometric center G, then we know
there are three vertices, vertex A, vertex B, vertex C in triangle ABC. तो consider coordinates of A, B, C as x1, y1, x2, y2 and x3, y3 respectively. Then by finding the average of x coordinate of all 3 points, you will get x coordinate of geometric center. It's very interesting. Similarly, if you want to find out y coordinate of geometric center, then you have to find out the average of y coordinates of all 3 vertices. अगर आपको हिंदसी वस्तु का x मोहद्दिद मालूम करना है तो A, B, C तीनों रासायन के x मोहद्दीन का औसत मालूम करना होगा। इसी तरह आपको हिंसी मरकज का y मोहद्दिद मालूम करना है तो मुसल्लस के तीनों राशि नुकात के y मोहद्दीन का औसत मालूम करना होगा। Therefore we have written here geometrical center G is equal to into bracket x1 plus x2 plus x3 upon 3 comma y1 plus y2 plus y3 upon 3. Okay? ठीक ओके कोई बात मशकी सेट 5.2 हल कर रहे हैं वो 4 ज़ाब्तों का इस्तेमाल करते हुए by using those 4 formulae we will solve practice set 5.2. Let's take first question. 2 points are given A and B. Coordinates of A are -1, 7 and coordinates of B 4, -3 and ratio in which divides 2:3. किसके मालूम करना है? पॉइंट P के। कौन डिवाइड कर रहा है? पॉइंट P. P is equal to into bracket mx2 plus nx1 upon m plus n. First write section formula. Similarly, my2 minus ny1 upon m plus n. Consider coordinates of point A as x1, y1, or B x2, y2. Put values. m की जगह पर आएगा 2 into x2 4 m x2 okay 2 into 4 plus n x1 n is 3 x1 minus 1 upon m plus n 2 plus 3 okay. Similarly put values in y coordinate. इसी तरह से y के लिए कीमतें हम रखेंगे m 2 y2 minus 3 plus n 3 into bracket y1 7 upon m plus n. 2 4 8 plus minus minus 3 on the 3 3 1 का 3 2 चौक 8 जमा नफी नफी 3 1 का 3 2 जमा 3 5. ऐसे ही जमा नफी नफी 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 प्लस 3 7 21 बटे 5 8 में से 3 गए 5 बटे 5 नफी 6 जमा 21 अलामतें गैर यकसा हो तो तफरीक का अमल करना चाहिए 21 में से 6 गए 15 हासिल को बड़े की अलामत देनी चाहिए जमा वाला है इसलिए नहीं लिखेंगे। अब हमें सी के नुकात मिल गए 5 बटे 5 5 1 का 5 5 1 का 5 कटेगा 1 कॉमा 5 लिया 15 तो ये हो गए सॉरी यहाँ पर पी था
जो नुक्ता सेगमेंट को डिवाइड कर रहा था वो P था, उसके हमने मुहद्दिन मालूम कर लिए 1 and 3 कोऑर्डिनेट्स। हो गया ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखेंगे आप, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A व्हिच डिवाइड्स सेगमेंट्स PQ इन द रेशियो A:B। अब यहाँ पर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, P और Q दो पॉइंट हैं, जैसे यहाँ पर A और B था, वहाँ पर P एंड Q है, और M और N कितना था यहाँ पर 2 और 3, तो इसमें कितना है 2 और 1 है। सेम तरीके से आप इन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T -1, 6 divides the line segment joining the points P and Q। अब यहां पर रेशियो मालूम करना है। देखो यहां क्या किया था, इसने 2 पॉइंट दिया था, डिवीजन का रेशियो दिया था, आपने डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम किए। अब क्या कर रहा है वो, ये भी पॉइंट दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और ये भी पॉइंट दिया हुआ है, रेशियो नहीं दिया हुआ, रेशियो मालूम करने के लिए कह रहा है। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? P पॉइंट दिया हुआ है, इसके मुहद्दिद हैं 90, 3, 10, और Q पॉइंट दिया हुआ है जिसके मुहद्दिद हैं 6 और 90, 8। तीसरा जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट T, इसके भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -1, 6, और पूछा क्या गया है, रेशियो पूछा गया है। M:N is asked, ratio is asked। Let's solve this example by using the same again section formula। Here dividing point is T, यहाँ कौन डिवाइड कर रहा है, T तकसीम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ज़ाब्ता वही रहेगा, कीमतें बदल जाएंगी। ध्यान से देखिए, T के पॉइंट्स हैं वहां पर, तो T की जगह पर मैं लिखूंगा अभी -1, 6 बराबर, T की जगह पर T के पॉइंट्स आए। ज़ाब्ते में M, लेकिन अब की बार M की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो राइट M as it is into bracket x2। Let's consider coordinates of point P as x1, y1 and coordinates of Q as x2, y2। M x2 means 6 plus n x1 minus upon m plus n, बराबर ना। सिमिलरली m y2 minus 8 plus n y1 10 upon m plus n। Okay, just we have put values given in the formula। हमने दी गई कीमतों को ज़ाब्ते में लिखा। अब इसको मुख्तसर करते जाते हैं, m into 6 प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन m प्लस, बराबर। सिमिलरली फॉर्मूला प्लस माइनस माइनस 8m प्लस 10n अपॉन m प्लस। -1 जो है ये x कोऑर्डिनेट, इसका ताल्लुक इससे, -6 जो है, नॉट माइनस, 6 बिलोंग्स टू दिस रेशियो फ्रैक्शन। ओके, अगर आप इस तरह से देखेंगे इसको,
6m minus 3n upon m plus n is equal to -1 बराबर 6m minus 3n क्रॉस ज़रब करते हैं, क्रॉस ज़रब m plus 1 जाएगा इधर तो -1 पहले से मौजूद है, m plus n इधर आ ज़रब कर रहे हैं इसलिए ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। अब क्रॉस को खोलते हैं, 6m minus 3n is equal to माइनस प्लस माइनस 1 ज़रब m 1m माइनस प्लस माइनस 1 ज़रब n 1m बराबर। तो पहला जो रेशियो है, निस्बत है, इसका ताल्लुक -1 से है, इसलिए हमने इसको लिया इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ब्रैकेट में m प्लस n इधर आ जाए, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस प्लस माइनस 1m माइनस प्लस माइनस 1 ज़रब n 1m हो गया, समझ में आ गया। अब सिमिलर एलिमेंट्स को एक तरफ करना है, मुशाबा अरकान को एक तरफ करना। 6m इधर है, 1m को इधर लो, नफी 1m इधर आएगा जमा 1m बन जाएगा बराबर। ऐसे ही नफी 3m को हम उधर लेकर जाएंगे, जमा 3n बन जाएगा। नफी 1n उधर पहले से मौजूद है, खड़ा है। ब्रिंग सिमिलर एलिमेंट टू वन साइड, bring -m to the left side, you will get 6m plus m. Take -3n to the right side, you will get positive 3n and -n is there. 6m जमा 1m 7m, 3n नफी 1m 2n बराबर। अगर हम n को शिफ्ट करते हैं, n क्या है, 2 into n, 2 ज़रब n है, ज़रब का अमल साइड बदलता है तो तकसीम का अमल बनता है। 2 into n, n is in the form of multiplication with 2. When multiplication shifts to the left side, it will become division. m upon n is equal to 2 upon 7. हमने नंबर से एक तरफ कर दिए और अल्फाबेट से एक तरफ कर दिए। m upon n रेशियो, सॉरी फ्रैक्शन, ये क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को उर्दू में कहते हैं कसर। कसर, कसर को जो है निस्बत में तब्दील किया जा सकता है। फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेशियो। m is to n is equal to 2 is to 7। दूसरा y के लिए हल करने की जरूरत नहीं है। There is no need to solve for y because whatever asked we have obtained here. आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, there may be a question in your mind, क्या हम y की वैल्यू लेकर सॉल्व कर सकते हैं? Yes, आप जिस तरह से मैंने x की वैल्यू लेकर सॉल्व किया है, आप जो है -8m plus 10n upon m plus n is equal to 6 लेकर भी सॉल्व करेंगे तो सेम रेशियो की वैल्यू आएगी 2:7। आप चाहे तो इंटरेस्टिंग होगा अगर उसको आजमा कर देखें, लेकिन एग्जाम में सवाल आता है तो इतना करना काफी है। व्हाट इज आस्क्ड वी हैव ऑब्टेन्ड, दैट्स ऑल। ओके, इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।